وہ تم لے لو۔ کون دے؟ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو۔ اور یہ بات آج دنیا میں اس بات کو لے کر کے جھگڑا ہے، لوگوں میں فساد ہے، اختلاف ہے، اور ایسا جھگڑا ہے کہ آج اگر پوری دنیا میں کوئی نبی سے مانگ لے تو لوگ شرک و کفر کے فتوے داغتے ہیں اس پہ کہ دیکھو جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، عزت مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ میں کہتا ہوں نہنجار بدمعاش فرقے سے کہ اگر رسول اللہ سے مانگنا یہ شرک و بدعت ہے، اگر نبی سے مانگنا یہ ناجائز و حرام ہے، تو پھر قرآن کیوں دعوت دے رہا ہے؟ اے لوگو، رسول جو تمہیں دے وہ تم لے لو۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس کا معنی یہ ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ نبی جس چیز سے تمہیں روکیں، تمہیں منع کریں، اس سے تم باز آ جاؤ۔ باتیں ہیں تو ایک تو یہ کہ جو دیں وہ لے لو، دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جس سے تمہیں روکیں، توجہ چاہو، مصطفیٰ جس سے تمہیں روکیں اس سے تم رک جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیے، اب غور کریے ذرا، میں پوری لسٹ آپ کے سامنے میں کیا نہیں رکھ سکتا دوسرا مقرر بھی آسانی سے کہ رسول دے کیا رہے ہیں، رسول کیا دے رہے ہیں۔ ارے توجہ کریں ذرا، رسول کیا دے رہے ہیں۔ اب آپ چلیے ذرا، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ساتھ میں سنتے چلیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول چاہیے، اور حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم چاہیے، اور دونوں کو سمجھنے کے لیے بریلی کے احمد رضا کا عشق چاہیے۔ اگر احمد رضا کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں سمجھ پائے گا کوئی۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے دعوے دار دنیا میں بہت آئے اور چلے گئے، لیکن قرآن کو نہ گنگوہی سمجھ سکا، نہ نوت نہ نوتوی سمجھ سکا، نہ رشید سمجھ سکا، نہ خلیل سمجھ کر سکا، نہ تھانہ بھون کا تھانوی سمجھ سکا۔ لیکن اسی قرآن پہ جب بریلی کے احمد رضا نے ایمان کی اور عشق کی نظر ڈالی تو وہیں سے پکار اٹھا، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ فاروق میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ فاروق میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے ادھر نہیں ہے، میں نے کیا کہا؟ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث، عشق مصطفیٰ، اور عشق مصطفیٰ پیدا ایسے نہیں ہوتا جب لوگ نبی کے، جب لوگ مصطفیٰ کی امت کے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے تو بریلی کا امام احمد رضا اسے بچا رہا تھا، تو پورا زمانہ للکار کے کہہ رہا تھا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں پر ایک منٹ کے لیے میں ٹاپک کو ہلکا سا چینج کرتا ہوں، پھر یہی آؤں گا۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس پہ لوگوں نے اعتراض کھڑا کیا، بولے کہ اعلی حضرت تو پٹھان تھے، انہیں سید کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا نہنجارو، جاہلو، گوارو، مکارو، عیارو، بدماشو، اعلی حضرت کو ہم نے سید اس معنی میں نہیں کہا کہ وہ نبی کی اولاد ہے، اس معنی میں کہا ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنے زمانے کے علماء کے سردار ہیں، اور سردار کو ہی سید کہا جاتا ہے۔ جی جی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اعلی حضرت سردار ہیں، اور ہم نے سردار کو کہا سیدی، اس کا معنی ہوتا ہے میرے سردار۔ پنجابیوں کو سردار کہو تو جائز،
सिक्कों को सरदार कहो तो जायज, और इमाम अहमद रजा को हमने सैयदी कह दिया मेरे सरदार। हम कहते कोई बात नहीं है, पंजाबी और सिक्कों का सरदार होना तुम्हें मुबारक हो, और बरेली के अहमद रजा मुफ्ती आज़म आलम ताज शरिया का सरदार होना हमें मुबारक हो। सुभान अल्लाह, बोले जरा लहद के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं जूड़े वाले सरदार तुम्हें मुबारक हो, और ईमान वाले अहमद रजा मुजद्दिद आज़म मुफ्ती आज़म आलम ताज शरिया ये हम अहले सुन्नत को मुबारक हो। क्यों? ये अपनी अपनी अता है, मुस्तफा ने हमें सरदार दिया है तो अहमद रजा दिया है, शैतान ने तुम्हें सरदार जैसे तुम थे वैसे ही दिए हैं। तुम झोली फैला के शैतान से ले लो, हमने झोली फैला के अपने सरकार से ले लिया। तो मैंने कहा कुरान को समझने के लिए इल्म चाहिए, अक्ल चाहिए, इश्क़ रसूल चाहिए। अब आइए मैं इसी की तरफ फिर चलता हूं। अब हम फैसला कराने के लिए देवबंद के किसी मुफ्ती पे नहीं जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो कुछ भी है देता है अल्लाह। कौन देता? बोलो जोर से बोलो, कौन? अरे लफ्ज़ अल्लाह तो मुंह से बोलो, अल्लाह। कौन देता है? अल्लाह देता है। लेकिन कुरान कहता है नबी जो दे वो ले लो। हमने कहा नबी ये बताइए जरा, अल्लाह देता है, कुरान कहता नबी जो दे वो ले लो। आओ हदीस पाक उठा के देखो, मेरे पैगंबर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं ए लोगों, अल्लाह मुझे देता है और सारे जहान को तस्लीम मैं किया करता हूं। सुभान अल्लाह। मसला हल हो गया, मसला क्लियर हो गया कि खुदा देता है मुस्तफा को। किसे देता है? ऊंचा बोलो, किसे देता है? खुदा देता है मुस्तफा को, और कायनात को देते हैं मुस्तफा। अब बताऊं कैसे देते हैं मुस्तफा? अब आइए इसी तनाजुर में बात हो जाए। हुजूर के सहाबी हजरत अबू हुरैरा वो कहते मुझे भूख ने सता डाला, और भूख इतनी ज्यादा मुझे लगी कि भूख ने मुझे घर में रहने नहीं दिया। भूख बहुत सता रही थी। मैं अपने घर से निकला और जाके बाहर रास्ते में खड़ा हो गया जहां से लोग गुजरते थे। कहते मेरे दिल में ये बात पैदा हो रही थी कि कोई यहां से गुजरेगा और मेरे चेहरे पे उदासी देखेगा, आंखें बैठी बैठी देखेगा, होठों पे खुश्की देखेगा, तो कोई पूछ लेगा क्या बात है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सिद्दीक अकबर का गुजर हुआ, मैंने सलाम किया, सिद्दीक अकबर ने जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। मुझसे पूछा नहीं। जब नहीं पूछा तो मैंने सोचा कि ये तो चले ही जा रहे हैं, तो मैंने कुरान करीम की एक आयत के ताल्लुक से उनसे पूछा कि जब बात होगी तो हो सकता कुछ पूछ ले। कहा उन्होंने कुरान करीम की आयत बतला दी और चले गए। कुछ ही देर के बाद हमारे फारूक आजम का गुजर हुआ, तो फारूक आजम को देखा, इन्होंने सोचा कि ये पूछेंगे अबू हुरैरा कैसे खड़े हो। अबू हुरैरा कह रहे हैं हमारे फारूक आजम से सलाम कलाम हुआ और मैंने कुरान की आयत के बारे में उनसे भी पूछा, जबकि मुझे वो आयत याद थी, लेकिन मैं पूछ ही रहा था कि हो सकता है ये पूछ ले कैसे खड़े हो। ये भी चले गए। अब वहां कोई, लेकिन हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि आन की आन में वो आ गए जिनके बारे में बरेली का इमाम पुकार उठा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। ऊंचा बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी। हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि मैं खड़ा ही था, मुस्तफा तशरीफ ले आए, और जैसे ही सरकार तशरीफ लाए तो सरकार से अभी मैंने कहा कुछ नहीं, सरकार ने मेरे चेहरे को देखा और मुस्तफा ने मेरे चेहरे को देख के मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने हजरत अबू हुरैरा को चेहरे को देखा और मुस्कुरा दिया। और यहां पर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सरकार से मैंने भी कुछ नहीं कहा,
लेकिन नबी ने मुस्कुरा दिया। और जब सरकार ने यहां मुस्कुरा दिया तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी की मुस्कुराहट को देखा तो मेरा गम दूर हो गया और मेरे चेहरे पे हंसी के आसार जारी हो गए। इसी को इमाम कहता है कि जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सरकार ने वही मेरे चेहरे को, सरकार ने वही मेरे चेहरे को देख के मुस्कुराया और मुस्कुरा के सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा आओ जरा मेरे साथ आ जाओ, आओ जरा मेरे साथ आ जाओ। यहां से ये भी जुमला निकला कि अबू हुरैरा ने कहा नहीं मैं भूखा हूं, मैं फाके से हूं, मुझे भूख ने सता डाला है। लेकिन नबी तो दिल की बात को भी जानते हैं। बोलो नबी दिल की बात को भी ऐसे बोलो ना, जानते हैं, जानते हैं। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा आओ ना मेरे साथ। अब सरकार हजरत अबू हुरैरा को हजरत आयशा के यहां ले गए जो मुस्तफा का मकान है। वहां जाके सरकार ने फरमाया आयशा तवज्जो चाहूं, घर में कुछ है? आयशा बोली सरकार घर में तो कुछ भी नहीं, वहां भी फाका यहां भी कुछ नहीं। हजरत आयशा बोली सरकार अभी अभी किसी के यहां से एक प्याला दूध आया है वो ही रखा है। अब आज दुनिया के अंदर जो गद्दार कह रहे हैं नबी हमारी तरह बशर, मैं कहता हूं कान खोल के सुन, एक प्याला दूध। नबी ने फरमाया आयशा ले आओ। दूध कितना था बोलो, अरे मुंह से बोलो कितना था? एक प्याला, 1 क्विंटल नहीं था, एक प्याला, एक प्याला दूध। सरकार ने फरमाया आयशा ले आओ। और ए हुरैरा अबू हुरैरा तुम ऐसा करो बाहर जो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है वहां पर और लोग भी बैठे हैं जो भूखे हैं, उन्हें भी लाओ बुला के। अब अबू हुरैरा कह रहे हैं मैं दिल में सोच रहा हूं कि यारो एक प्याला दूध है, इसे तो नहीं पी लेता। तो सरकार फरमा रहे उन्हें भी बुला लाओ। हजरत अबू हुरैरा जब बुला के लाए तो वो 70 आदमी हैं। सुभान अल्लाह, कितने थे बोलो? 70 आदमी हैं। अब हजरत अबू हुरैरा उन्हें बुला के लाए। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा ये लो दूध का प्याला। और वो एक प्याला दूध मेरे करीम नबी ने अबू हुरैरा के हाथ में दिया, फरमाया लाइन से पिलाओ जरा। अब ये पी रहे पेट भर के पी लिया, दूसरे को दिया पेट भर के पी लिया। अबू हुरैरा कह रहे हैं मैं सोच ही रहा था कि सरकार मुझसे अब कैसे फरमा देंगे तुम पी लो, मुझसे नबी फरमा नहीं रहे, फरमा रहे पिला जाओ पिला जाओ पिला जाओ। और जिसको भी दिया प्याला हाथ में डट के दिया। और जब तक डकार नहीं आ गई छोड़ा, जोर से बोल दो, बेशक सुभान डकार आ गई, पेट भर गए। 70 ने पिया। अबू हुरैरा कह रहे हैं बाद में सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा तुम भी पी लो, को जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तुम भी पी लो। मैं कहता हूं पूरी दुनिया के वहां भी जमा हो जाए, टांडे के भी हो, थाना भवन के भी हो, नानोता के भी हो, अम्बेठा के भी हो, एक प्याला दूध, एक प्याला दूध 70 को नहीं 60 का पेट भरवा दे। लेकिन ये तो नबी जाने और खुदा जाने कि मुस्तफा ने उस प्याले में कनेक्शन जन्नत की कौन सी नहर से कर दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सरकार ने भी पिया, मैंने भी पेट भर के पिया। इसी को बरेली का इमाम कहता है कि हुरैरा कैसा था वो जामशीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। मुझे बोले सुभान अल्लाह। क्यों अबू हुरैरा कैसा था वो जामशीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। बेशक ये इस्लाम मेरे तुम्हारे तक इतनी आसानी से नहीं आ गया। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। मेरे आपके नबी पैदा हुए मक्के में। कहां पैदा हुए बोलो? मक्के में। अरे ये बात तो आपसे कोई पंडित भी पूछ सकता है ना यार, कहां पैदा हुए बोलो? मक्के में पैदा हुए। लेकिन जब मुशरिकीन ने मक्का ने सताया तो हुक्म हुआ कि महबूब आप मदीने तशरीफ ले जाएं। सरकार जब मदीना शरीफ पहुंचे तो ये जो अबू जहल
उतबा और ऐसे ऐसे लईन, इन्होंने मंसूबा ये बनाया कि नबी मदीने में है और मदीने पे चढ़ाई कर दो। मंसूबा तो देखो, बोले मदीने पे चढ़ाई करो। हजरत बिलाल आया, उन्होंने बताया कि सरकार मदीने पे लोग चढ़ाई लेके आ रहे हैं आपके लिए। सरकार ने फरमाया बिलाल जल्दी उठो और ऐसा करो कि मदीने में जितने लोग हैं अपने खास खास और जिम्मेदार सबको बुला तो लाओ। हजरत बिलाल गए, गली गलियारों में रास्तों में आवाज लगाई, लोग आ गए जो सरकार के शहदाई थे। जब आए तो सरकार ने फरमाया कि मक्के के काफिर चढ़ाई करने आ रहे हैं, बोलो क्या करना है। तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी। हजरत सलमान फारसी उठे, उठ के बोले या रसूल अल्लाह ऐसा करो कि मदीने शरीफ के इर्द गिर्द यानी चारों तरफ खंदक खोदी जाए, चौड़ी सी खंदक खोद दो और खंदक खोद के आने जाने के रास्ते रखो, बस फिर मुकाबला होगा। सरकार ने फरमाया सलमान तुम सही कह रहे हो, इसी को हम मान लेते हैं। अब सरकार अपने सहाबा को लेके उठे, जब खंदक खोदने के लिए बाहर निकले मुस्तफा, तो क्या देखते हैं निगाह नबूवत से कि जहां खंदक खुदनी है वहां खंदक खोदने के लिए निशान पहले ही से लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले ही से लगा हुआ है। अब सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम तो खंदक खोदने अब आए और यहां निशान पहले ही से है। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें मालूम है कौन लगा गया है? ये निशान जिब्रील अमीन लगा के गए हैं। सुभान अल्लाह, जिब्रील लगा के गए हैं। अब सरकार ने खंदक को खोदना शुरू किया। सिद्दीक अकबर खोद रहे हैं, फारूक आजम खोद रहे हैं, उस्मान सिंदूरैन खोद रहे हैं, मौला अली हैदर कररार खोद रहे हैं। एक पत्थर बड़ा भारी आया, किसी से टूटता नहीं। सहाबाए किराम हिम्मत करते करते, मेहनतें करते करते पसीने पसीने हो गए, टूटता ही नहीं। सरकार ने फरमाया नहीं टूटता, आकर टूटता ही नहीं। सरकार ने कुदाल लिया हाथ में और कुदाल ले करके जब एक बार गया तो खील खील हो गया। सुभान अल्लाह, जब औरों से नहीं टूटा तो मुस्तफा से टूटा क्यों? जुमला क्लियर हो जाए कि और जिस्मानी ताकत से तोड़ रहे थे, ये नबूवत का वार था, रिसालत का वार था। और ऐसी ताकत जिसके बारे में इमाम अहमद रज़ा बरेली शरीफ से पुकार उठे, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं। बोले जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। एक ही बार में मुस्तफा ने उसे खील खील कर दिया। अब हजरत अबू हुरैरा, हजरत जाबिर आगे बढ़े, तवज्जो है नहीं है जी जी। हजरत जाबिर बढ़े आगे, इन्होंने आगे बढ़ के चेहरा मुस्तफा को देखा।